कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? कौन ऑनलाइन है जी? अटेंडेंस भी लगवाओ और बताओ कौन कौन है। महरीन, नेहा, नुदरत, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो मेंटल हेल्थ इलनेस का और मेंटल हेल्थ का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अगली स्लाइड्स को देखेंगे। जी नुदरत, महरीन, गुड मॉर्निंग। हमने देखा था पाकिस्तान के अंदर इसका क्या है। हाँ जी महरीन, मैं ठीक हूँ। हमने पाकिस्तान में देखा था कि मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री क्या चल रही है, ठीक है। और हमने काफ़ी डिटेल चीज़ें इसमें देखी थी कि पहले असाइलम थे बने हुए, फिर कैसे हुआ, कितने % लोग जो है वो अप्रोच करते हैं। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम देखेंगे बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। पेशेंट्स के बिल ऑफ राइट्स क्या है। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो जाए। मेरे सबको मैसेज करो। हाँ जी मेरे ग्रुप में मैसेज कर दिया आपने? ठीक है, आज हम देखेंगे पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स में है टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेनिफिट क्वालिफिकेशन, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में क्या है, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट द बेनिफिट्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोवाइडर्स, अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड अपील्स एंड द ग्रीवेंस ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ राइट्स में आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, ठीक है नीजा। अच्छा, हम बात करते हैं कि लोग मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं अप्रोच करते, ठीक है। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट है
کہ جی اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے لیے جائیں گے، اپروچ کریں گے، تو لوگ ہمیں اسٹگما کر دیں گے کہ یہ پاگل ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسے اسٹگما کریں گے، اسٹگما کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ مینٹل ہیلتھ کو اپروچ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ چیک کروانے کے لیے گیا ہے کسی کلینک پہ، کسی مینٹل ہیلتھ سیٹ اپ میں، تو اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، اس بات کو لیک آؤٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یا جس طرح آپ کہہ لو رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ ہیں، ان میں کوئی اگر آس پاس کی کلینکس وغیرہ میں یا فزیشین وغیرہ کے پاس جاتا ہے، تو اس محلے میں، اس ایریا میں جو کلینک ہے اس میں اتنی زیادہ مشہوری نہ کی جائے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپروچ نہ کر پائے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد چوائس آف پرووائڈرز میں کیا ہے، چوائس آف پرووائڈرز میں کہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کس سے ٹریٹمنٹ لینا ہے، ہم یہ چوز کر سکتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے تو۔ جیسے کہ اب ہاسپٹل سیٹنگز ہیں، اب جیسے کوئی چاہتا ہے کہ میں اس جگہ سے ٹریٹمنٹ، کوئی لوگ جو ہے وہ پشاور سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ لاہور سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ حیدرآباد سے لینا چاہتے ہیں، جتنے بھی سیٹ اپس ہیں۔ اب جیسے لاہور کی ہی آپ بات کر لو، لاہور کے اندر ہی اتنے سارے سیٹ اپس ہیں۔ ہاں جی مبین، گروپ میں میسج کر دیا آپ نے؟ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کر رہی ہوں، آپ یہ پکچرز دیکھو، یہ مینٹل ہاسپٹلس کی ہیں، لاہور کے اندر بھی ہیں جو مینٹل ہاسپٹل اس کی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پکچرز ہیں، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ مینٹل ہاسپٹل کی ہیں، کچھ پاکستان کی ہیں، کچھ اور جگہوں کی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو ہے، یہ جدھر واک ہو رہی ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، یہ پرانا ایم ایس ہے، یہ اس کی پکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انڈیا کے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، اس کے اندر جو شو کیا میں۔
یہ ادھر کا ہی ہے، یہ ہمارا جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور ہے، یہ اس کی ہے جب کینٹین یہاں پہ بنائی گئی تھی اس کی تصویر ہے، یہ واک کر رہے ہیں، یہ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا گیا ہے، یہ اس کی امیج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو گروپس میں کام ہوتا ہے یہ اس کی ہے، ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کا لوگو ہے۔ یہ جب سپورٹس ڈے ہوتا ہے یا اس طرح کی جب سپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو پیشنٹس وغیرہ کے لیے جب یہ کرواتے ہیں تو اس کی امیجز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، یہ دیکھو یہ پکچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے سیٹ اپس ہوتے ہیں، پیشنٹس کے لیے ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ یہ مینٹل ہیلتھ کے 10 اکتوبر کو جو ڈے ہوتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 10 اکتوبر کو ڈے ہوتا ہے، اس میں یہ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا گیا، تو اس میں یہ انہوں نے سارے گروپ کی سائیکیٹرسٹ ہمارے جتنے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں یہ ان کی پکچرز ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ یہ جو واک ہو رہی ہے اس میں جو ایم ایس ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشنٹس ہیں مینٹل کے ہی اوریجنلی، ٹھیک ہے۔ کچھ اور ہاسپٹلس بھی ہیں اس میں، صرف مینٹل ہی نہیں ہے۔ یہ مینٹل ہاسپٹل شادمان نرس، یہ والی جو ویڈیو ہے آ رہی ہے جو سٹی 42 پہ، یہ مینٹل کی ہے۔ یہ جو ہے یہ علامہ اقبال ہے ہمارا وہاں کا، یہ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ پہ اسکرین پہ جو آپ کے پاس شو ہو رہا ہے نا، جو اخبار پڑھ رہا ہے، اس کا نام علامہ ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اس کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے اور بڑا اتھینٹک بندہ ہے، یہ باتیں کرتا ہے کوئی تو یہ میں نے آپ کو وہ بتائی تھی بات کہ جو ہے وہ وارڈ کا سٹرکچر وغیرہ یہ وہ والے سین سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بھی علامہ ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کی سردیوں کی تھی، یہ اس کی ابھی کی پکچر ہے، یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے جہاں پہ اس نے، یہ بھی علامہ ہے۔ یہ وارڈ ہے، وارڈ کے اندر دیکھو باڈی بلڈر آیا ہوا ہے، یہ یقیناً ایڈکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایڈکشن کے بعد آیا ہوا، یہ نشہ نشہ کرتا ہوگا، یہ ایڈکشن والی وارڈ ہے۔ یہ دیکھو یہ پیشنٹس ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ والی اسکرین میں جو شو ہو رہے ہیں سب لائن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبد القیوم ہے، درمیان میں جو چھوٹا سا بابا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ عبد القیوم ہے، یہ جو چھوٹا سا بابا بیٹھا ہے یہ شکوری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نام مجھے پتہ ہے، جس نے منہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے اس کا نام عبد السلام ہے۔ پکچرز نظر آ رہی ہیں نا ٹھیک سے؟ یہ جو بیہائنڈ دا وال آف مینٹل ہاسپٹل ہے، اس میں جو اوپر ٹیبل کے پیچھے یہ جو لوگ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ پہلے ابھی آج کل جو ویو ہے نا مینٹل کا وہ یہ ہے، انٹرنس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو قلعہ سا بنا ہوا ہے آج کل یہ ہے، اس کو چینج کیا گیا، اس سے پہلے یہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ ویو تھا، اس کو چینج کیا گیا اور اس میں کنورٹ کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو گیٹ لگا ہوا ہے نا، ابھی یہ گیٹ اتار دیا گیا، یہاں پہ جو گیٹ تھا نا اس گیٹ کو 1.25 صدی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سال سے بھی پرانا تھا اور نہ وہ ٹوٹا تھا نہ خراب ہوا تھا نہ اکھڑا تھا کہیں سے بھی،
1.25 सदी पुराना गेट था यहाँ पे, तो उस गेट को उतार के म्यूजियम में भिजवा दिया गया। वो इतना एंटीक्स में अब वो काउंट होता था, ठीक है। तो उसको फिर भिजवा दिया गया था। ये भी मेंटल का है, ये सारे पेशेंट्स। ये एडिक्ट्स देखो, जब इंजेक्शन लगाते हैं, ये देखो इंजेक्शन लगाते लगाते ही उसके हाथ में ही नीडल है और वो बस टुन हो गया लगाते लगाते। इसी तरह होता, मैंने खुद देखा हुआ है, इंजेक्शन लगाते लगाते ही उसको हो गया उसका काम, और वो वहीं पे नीडल समेत ही बेहोश। ये भी मेंटल की वार्ड है। पाकिस्तान पुअर सीक मेंटल हेल्थ केयर एट शरीन, ये मेंटल हॉस्पिटल है। अच्छा, अब आजकल जो है वो पेशेंट्स को बांधा नहीं जाता, क्योंकि अभी ये लॉ बन गया है कि पेशेंट्स को बांधना नहीं है, ठीक है। अब बांधा नहीं जाता, वो पहले की बात है जब बांधते थे। तेरे नाम मूवी याद है आप लोगों को? उसके अंदर भी था ऐसे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन उसमें दिखाई गई थी रियल में इस तरह की नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स में क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ प्रोवाइडर्स होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस जगह पे इस डॉक्टर को चेकअप कराऊं, तो उनको राइट होना चाहिए कि वो करवा सकें। वो रिफ्यूज़ल का राइट पेशेंट्स के पास होना चाहिए। अब जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो यहाँ पे फाउंटेन हाउस है प्राइवेट बना हुआ, वहाँ जाते हैं, ठीक है। या प्राइवेटली जो लोग कहते हैं कि स्टिग्मा हो जाएगा अगर हम मेंटल में डायरेक्ट लेके गए तो वो वहाँ नहीं जाते, वो म्यू के जो साइकेट्रिक यूनिट्स हैं वहाँ ले जाते हैं, सिर्फ गंगाराम के हैं और सर्विसेज के साइकेट्रिक यूनिट्स हैं वो वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लोग करते हैं, या प्राइवेटली जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे लोग ले जाते हैं, ताकि जो है ना चॉइस ऑफ प्रोवाइडर भी उसमें हम अपना कवर कर लेते हैं और साथ में जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसमें कवर हो जाती है। ट्रीटमेंट डिटरमिन्ड बाय द प्रोफेशनल्स नॉट थर्ड पार्टी, ट्रीटमेंट जो कि डिटरमिन की जाती है प्रोफेशनल जिसके बारे में डिटरमिन करते हैं कि क्या देनी है, और इसके अलावा थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे ये फिट आता है कि देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट के अटेंडेंट बीच में इन्वॉल्व होते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है कि मैंने इसे ठीक करना है, तो जो थर्ड पार्टी है, लोग अक्सर मेंटल पेशेंट जो होते हैं जिनके जायदाद वगैरह के इश्यूज होते हैं चाहते ही नहीं कि वो ठीक हो, वो चाहते हैं कि वो पागल ही हुए रहें ताकि हमारे पास ही हर चीज़ रहे। तो थर्ड पार्टी ये बिल ऑफ राइट है कि कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोफेशनल के अलावा। इसके अलावा पेयर्स जो होते हैं, पैरिटी क्या है, ठीक है। पेयर्स और पैरिटी का क्या मतलब है? जी, पेयर का मतलब पे से निकला है कि कौन पे करेगा उनसे रिलेटेड, ठीक है। पैरिटी का क्या मतलब होगा?
جی पेयर्स का मतलब क्या है? पैरिटी का मतलब है कि ऑफ बीइंग इक्वल, ठीक है, कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली एज रिगार्ड स्टेटस और पे, ठीक है, स्टेटस से रिलेटेड या पे से रिलेटेड या जो है वो जो भी उनके पे कर रहा है उससे रिलेटेड जो है वो इक्वल रखा जाए, यानी कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, जो अगर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो वो इक्वल दी जाए। हाँ बिल्कुल तैयबा आप सही कह रहे हो कि वो खुद करवाते हैं। मैंने यही कहा है कि मेंटल जो कुछ लोग इस तरह से कुदरती खुदा की करनी ऐसी है या पता नहीं क्यों ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जिन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है उन्हीं के पास ही जो है वो ही मेंटल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है ये समझ नहीं आती है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बेसिकली वजह क्या है, शायद वो होते नहीं है, उन्हें कर दिया जाता है, ठीक है। पैरिटी का मतलब है कि इक्वली डील किया जाए सब लोगों को, और पेयर का मतलब है कि जो भी आपसे रिलेटेड ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो आपकी पे करने वाला है, जो आपके ये सारी चीज़ों को देखने वाला है, ठीक है, वो पेयर है। अब जैसे जब आते हैं पेशेंट्स के पास, जब वो आती हैं क्या कहते हैं, जब पेशेंट्स के लिए सर्दियों में जब चीज़ें आती हैं, फैसिलिटीज़ आती हैं, तो उनमें पेशेंट्स को इक्वली डिवाइड हो। अब मैं आपको एक सिंपल खाने की बात बताऊं कि अगर वहाँ पे खाने आते हैं पेशेंट्स के लिए, या ईदों पे कपड़े आते हैं, चूड़ियाँ आती हैं, ज्वेलरी आती है, अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छे खाने आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे उनसे ले जाते हैं, ठीक है। उनको इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता, उनको प्रोवाइड नहीं चीज़ें की जाती, बल्कि उनकी चीज़ों पे कब्जा कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे चीज़ को एक प्रोमिनेंट करूँगी कि जब खाने आते हैं, अच्छे खाने जो है वो खुद ले लिए जाते हैं, पेशेंट्स को बचा कुचा दिया या थोड़ा थोड़ा दिया, हालांकि आता उनके हक का, ठीक है। ये भी लोगों के एक गलत चीज़ें हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ये बिल ऑफ राइट है। ऑल बेनिफिट्स विद इन स्कोप ऑफ बेनिफिट प्लान होने चाहिए, जितने भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं स्कोप के अंदर हो। बेवजह किसी को ओवर फीड भी नहीं करना है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो इक्वली डिवाइड करके सबको दो। जैसे कि अगर आपके पास अगर आपके पास खाने की चीज़ कोई आई है या ज़रूरत की कोई चीज़ आई है और आप चाहते हो कि सबको इक्वली दी जाए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर और वैलिड ट्रीटमेंट रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फेयर और वैलिड ट्रीटमेंट रिव्यू होना चाहिए। ट्रीटमेंट दैट अफोर्ड्स ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट, ट्रीटमेंट वो होनी चाहिए जिसका जो अफोर्डेबल हो और ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन भी हो उसकी, और उसके बेनिफिट भी ज़्यादा हो। बेवजह बेतहाशा मेडिसिन नहीं शुरू करवानी, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स एंड पेयर्स हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी इंजरी कॉज्ड बाय द ग्रॉस इनकम्पिटेंस, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोफेशनल जो हैं या पेयर्स जो हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे करता है ना, हॉस्पिटल उनको रख रहा है, हॉस्पिटल अफोर्ड कर रहा है उनकी सब चीज़ें, तो बेसिकली यहाँ पे पेयर में इनके हॉस्पिटल आ जाता है, क्योंकि अब जैसे मेंटल हॉस्पिटल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसकी एडमिशन फ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये है, 70 रुपीज़ एडमिशन फ़ी है। उसके बाद पेशेंट के सारी चीज़ें जो है वो फ्री में होती हैं। कंबल न्यू आते हैं, हर चीज़ कंबल न्यू है, हीटर्स लगाए जाते हैं, चाय खाना पानी हर चीज़ पीने के लिए हर चीज़ दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो प्रोफेशनल है जो ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं या वार्ड बॉयज़ हैं, वो आंसरेबल हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है, उन्होंने जवाब देना है किस चीज़ का। जब पेशेंट आपके पास रह रहा है तो उसको वहाँ पे किसी किस्म का फिजिकल इंजरी का या थ्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शायद एक दफ़ा कभी आप लोगों को बताया हो कि पेशेंट ने सुसाइड कर ली थी, ठीक है। जब पेशेंट ने सुसाइड किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो केस पड़ गया वर्कर्स के ऊपर, किसने सुसाइड की है, ठीक है, नर्स के ऊपर। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं वो आंसरेबल हैं, वो अकाउंटेबल है, और जो पेयर है यानी कि मैनेजमेंट, तो वो बात मैनेजमेंट के ऊपर भी गई, ठीक है। इसमें क्या आता है, फॉर एनी इंजरी कॉज्ड बाय
ग्रॉस इनकम्पिटेंस, इसमें जब बात आती है तो फिर वो ग्रॉस यानी कि कंबाइन करके एक्यूमुलेटिव इनकम्पिटेंस काउंट की जाएगी। अब एमएस ने तो जाके पेशेंट को रोटी नहीं खिलानी थी ना, रोटी तो खाना तो खिलाना वर्कर्स का काम था, नर्सिस का काम था, आया का काम था सुपरवाइज करना, देखना, नर्सिस ने सुपरवाइज करना था, आया ने खाना खिलाना था। लेकिन होता क्या है कि जब बात आती है तो फिर अपर से लेके लोअर मैनेजमेंट सबके ऊपर आती है, ठीक है। नेग्लिजेंस ग्रॉस काउंट होगी, क्लिनिकली अनजस्टिफाइड डिसीजंस ग्रॉस काउंट होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि उस पेशेंट ने सुसाइड कर ली और किसी ने उसको देखा नहीं, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रॉब्लम किसकी आ गई, बात किस पे आई, टोटल मैनेजमेंट के ऊपर आई कि इन्होंने नेग्लिजेंस किया, मैनेजमेंट पे आई कि अनजस्टिफाइड डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, क्लिनिकली अनजस्टिफाइड थे, इनकम्पिटेंट थे, ठीक है। अब वो जो एक सुसाइड हुई उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद से उन लोगों ने हर एक सुसाइडल पेशेंट पे जिसको हिस्ट्री जिसकी ली गई और जिसका पता लगा कि इसकी सुसाइडल टेंडेंसी है, तो उसको क्या किया गया, उसके ऊपर एक अटेंडेंट जो है वो फिक्स कर दिया गया कि ये इसके ऊपर इसका पैरा देगा, इसके ऊपर इसके ऊपर खास ध्यान रखेगा और ये सिर्फ इसका केयर टेकर है, ठीक है, ताकि उसको खाने पिलाने पानी से लेके उसको ऑब्जर्व करने तक और किसी किस्म के अग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। फिर उसके ऊपर स्पेसिफिक ड्यूटी की जाती है और दूसरा उसको सेल में रखा जाता है। जब कोई पेशेंट सुसाइडल का आता है तो उसको सेल में रखते हैं और उसके पास किसी भी किस्म का कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जाती जिससे वो हैंग कर ले या कट कर ले या कुछ इंजेक्शन या कुछ भी इनहेलेशन में कोई चीज़ जाए, ठीक है। मैनेजमेंट पे ब्लेम इसलिए करते हैं कि मैनेजमेंट को सैलरी दी जा रही है, मैनेजमेंट आंसरेबल है, ठीक है। और जब मैनेजमेंट को हायर किया गया है इसी काम के लिए तो मैनेजमेंट ने जवाब देना ही देना है। अब आप नर्स हो, आपको पता है कि नर्सिंग का मतलब क्या है कि आपने केयर देनी है, आपने मेडिसिन के साथ साथ आपने केयर भी प्रोवाइड करनी है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे रॉन्ग कौन है, आप हो, ठीक है। अच्छा, राइट्स ऑफ क्लाइंट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले सिविल राइट्स हैं। सिविल राइट्स में क्या आएगा, पीपल विद मेंटल इलनेस आर गारंटीड सेम राइट्स अंडर फेडरल हो या स्टेट लॉज हो एज एनी अदर सिटीजन, ठीक है। सिविल राइट्स क्या है, अब आपको पता सिविल वॉर क्या होती है, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के दिनों में आपने सुना होगा लोग अक्सर कहते थे कि बस खुदा खैर करे कहीं सिविल वॉर ना शुरू हो जाए। सिविल वॉर क्या होती है जी, जी। अच्छा, सिविल राइट्स क्या हैं, जो कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए जो राइट्स बनाए जाते हैं, उन्हें जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसको सिविल राइट्स कहते हैं, ठीक है। सिविल राइट्स में उन्होंने कहा कि पीपल विद मेंटल इलनेस आर गारंटीड, उनको गारंटी दी जाती है, वो गारंटीड होते हैं सिविल राइट के अंदर। ये सबसे ज़्यादा एज उनके लिए है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी उनके लिए है कि गारंटीड उनको सेम राइट्स दिए जाते हैं अंडर फेडरल एंड स्टेट लॉज एज एनी अदर सिटीजन। जैसे बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, जैसे बाकी लोगों को फीड किया जाता है, जैसे बाकी लोगों को हेल्प आउट किया जाता है, वैसे ही जो मेंटली इल हैं उनको भी किया जाएगा, इस चीज़ की गारंटी होती है। ये सिविल राइट्स का पार्ट है। अगर मेंटल में अगर किसी पेशेंट को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसे खाने को नहीं दिया गया, पहनने को नहीं दिया जा रहा, तो पेशेंट के अटेंडेंट के पास राइट है कि वो केस कर सकता है कि भाई जब हमारे पास सिविल राइट है तो आप लोगों ने आप उसमें हमारे पेशेंट के लिए क्यों नहीं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे, हमारे पेशेंट्स के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है। इनवॉलंटरी एडमिशंस में क्या आएगा, मेड विदाउट पेशेंट्स कंसेंट। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है, नेसेसरी व्हेन द पेशेंट इज डेंजर टू सेल्फ और अदर्स और अनएबल टू मीट बेसिक नीड्स और एज रिजल्ट्स ऑफ साइकेट्रिक कंडीशन, ठीक है।
इनवॉलंटरी एडमिशन हम करवा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, और विदाउट पेशेंट कंसेंट भी हो सकता है। क्यों क्यों मुझसे कोई लेक्चर हो रहा है, पूछो काम क्या है, पूछें ज़रा मुझसे, पूछें कि अगर वो है मिस्त्री वगैरह हैं या कुछ इस तरह के हैं तो उसे कहीं करवा ले। अगर कोई आए हैं पेंट वगैरह के या इस तरह के, तो रूटीन में जैसे होता है उसे करवा ले। और अगर कोई मेंटेनेंस का काम है, लॉक वगैरह का, कबर्ड शबर्ड का, तो उसे को आपा को भेज के शुरू करवा ले, मैं आके देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, वो देखते हैं इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं कि सिविल राइट है। अब अगर हम नॉर्मल पेशेंट की बात, कोई अगर जो मेंटली इल नहीं है, वैसे फिजिकली उसको कोई और इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको राइट होता है कि वो ट्रीटमेंट से रिफ्यूज कर सकें, ठीक है, और वो चाहें कि तो हॉस्पिटल ना जाएं। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि जब पेशेंट आता है, क्या कहते हैं, जब होता है मेंटली इल होता है, तो उसको हमारे पास राइट है कि हम उसको क्या करें कि हम उसे बगैर कंसेंट के हम उसका एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी जगहों की अगर हम बात करें, बाकी पेशेंट्स की जो अदर डिजीजेस के होते हैं, उनको हम अगर उनकी मर्जी नहीं है तो हम उन्हें एडमिट नहीं करवा सकते, ठीक है, इस तरह की चीज़ भी होती है। क्यों हमारे पास क्यों राइट है कि जो मेंटली इल हैं हम उन्हें एडमिट करवा सकते हैं? हम उन्हें इसलिए एडमिट करवा सकते हैं क्योंकि वो डेंजरस हैं, वो डेंजर हैं फॉर सेल्फ और फॉर अदर्स, ठीक है, वो अपने आप को भी खतरा पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त साइकेट्रिक कंडीशन से गुजर रहे हैं, और वो जो साइकेट्रिक कंडीशन है वो उन्हें कहती है कि इनको यहाँ पे एडमिट होना ज़रूरी है, अदरवाइज इनको इनको सेल में बंद करना ज़रूरी है, इनको रिस्ट्रेन करना ज़रूरी है। मैंने तो नहीं नाम सुना कभी, क्या हुआ? वो कह रहे कोरोना के हम लोग आए हैं, वो स्पेक्ट्री है कोरोना से, 33 नंबर कमरे में है, तो उसमें लगा हमारे पास 33 है ही नहीं कमरा। हमारे ना इस नाम की है भी नहीं है। बच्चे 1 मिनट होल्ड करना, मैं ज़रा आ रही हूँ, ठीक है, आप इतनी देर ये स्लाइड्स को रीड करो, तो मैं आ रही हूँ थोड़ा सा मसला देख के।
جی اچھا، پھر اس کے بعد ہے پرسنس can be detained in a psychiatric facility for 48 to 72 hours on an emergency basis until a hearing can be conducted to determine whether or not he or she should be committed to facility for treatment. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ ایک پرسن کو ہم ڈیٹین کر سکتے ہیں سائکیٹرک فیسلٹی میں 48 سے 72 آورس کے لیے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں، ایمرجنسی بیسس پہ، جب تک کہ کوئی ہیئرنگ آف کنڈکٹڈ ڈیٹرمن، جب تک کہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی، کوئی اس کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، جب تک وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائلنٹ بیہیویئر میں ہے، یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہم اسے وقتی طور پہ اپنے پاس اس کو کنفائن کر سکتے ہیں جب تک اس کے علاوہ کوئی اور کمٹمنٹ نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کو، یعنی کہ یہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ لا کی بات ہو رہی ہے، سول رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پیشنٹ، اگر آپ کو باہر کوئی ملا ہے ایسا جو وائلنٹ بیہیویئر میں کسی کو مار رہا ہے، تو ہاسپٹل بھی ایون اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس کو میڈیسن وغیرہ یہ وہ چیزیں کر سکتا ہے 48 to 72 آورس کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے پاس رائٹ ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جب تک اس کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا کہ اسے ٹریٹمنٹ فیسلٹی کیا دینی ہے، تب تک اگر ہم نے اسے 48 سے 72 آورس کے لیے رکھ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آئی بات؟ اکثر پیشنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اکثر پولیس، جیسے پولیس ہوتی ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اکثر جو پولیس ہے وہ لے کے آتی ہے مینٹل پیشنٹس کو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مینٹل ہاسپٹلز میں، کہ جی یہ محلے میں یہ مار کٹائی کر رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ اگریسو ہے اور یہ بچوں کو نقصان پہنچا رہا تھا یا فلان آتے جاتوں کو مار رہا تھا، تو پولیس اسے پکڑ کے وہاں لے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس طرح سے کیسز ہوتے ہیں دارالمال میں یا یہاں وہاں سے میل فیمیل پکڑ کے وہ لے کے آتے ہیں، جی یہ مینٹل تھا، یہ فلانی جگہ پہ تھا، اسے ہم پکڑ کے یہاں لے آئیں، یا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آتے تھے جب مینٹل میں، جب لوگ جو ہے سڑکوں پہ جو میلز ہیں وہ نیکڈ ہو کے گھومتے تھے، تو پولیس کو انفارم کیا جاتا تھا، پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی ان کو اور لا کے تو مینٹل میں چھوڑ دیتی تھی۔ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ ریلیز فرام ہاسپٹل، اچھا وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں پھر ان کا نام ان نون ہوتا ہے، ان کا ہم ان نون نام رکھتے ہیں کہ انہیں اپنا نام نہیں پتا، ان سے پوچھو کیا نام ہے، انہیں اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا، ان کو ان نون بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیز فرام ہاسپٹل، پیشنٹس ہیو رائٹ ٹو ڈیمانڈ اینڈ obtain ریلیز، پیشنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے ریلیز کی۔ many states require patient submit written release notice to staff، کافی اسٹیٹس یہ کہتی ہیں کہ جب تک پیشنٹ ریٹرن اپنا ریلیز نہیں مانگتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ریٹرن اگر وہ ریلیز مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ وہ کیپیبل ہے، وہ مینٹلی کیپیبل ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ مینڈیٹری آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں کیا ہے کہ لیگلی مینڈیٹری آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ یعنی کہ MOT is the requirement that the client continue to participate in the treatment on an involuntary basis after their release from the hospital into the community، ٹھیک ہے۔ لیگلی انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹری آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے دیٹ دا کلائنٹ کنٹینیو ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ٹریٹمنٹ۔ پیشنٹ اگر ایڈمٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر ڈاکٹر کو چیک اپ کروا گیا ہے تو جو آؤٹ پیشنٹ میں اس کا جو ٹریٹمنٹ دے دیا گیا ہے، مینڈیٹری ٹریٹمنٹ اس کو ایڈوائز کیا گیا ہے، وہ لازمی لے، اس کو مس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹریٹمنٹ کو مس کرتا ہے کیا ہے کنٹینیو ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ٹریٹمنٹ آن این انوالنٹری بیسس ہے آفٹر دیئر ریلیز فرام دا ہاسپٹل انٹو دا کمیونٹی، چاہے وہ اس میں والنٹیئر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو میڈیسن لینی ہی لینی ہے جب وہ ڈسچارج ہو کے چلا گیا ہے۔ یہ پیشنٹ کے اوپر چیز مینڈیٹری ہے۔ اگر میڈیسن، آپ نے مجھے اس دن لاسٹ ٹائم یہ کویشچن پوچھا تھا کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا نہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر میڈیسن لیتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ چاہے پیشنٹ جو ہے وہ لیگلی یہ کہا جاتا ہے کہ مینڈیٹری ٹریٹمنٹ اس نے لینی ہی لینی ہے تاکہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیبل رہے، کیونکہ پیشنٹ کو اگر ڈائبٹیز ہے یا کینسر ہے تو وہ ہمیں نہیں دے رہا، اس کو خود کو ہے، لیکن اگر کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہے تو وہ سب کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ سب کے لیے پرابلم کا باعث ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جینیٹیکلی نہ تو ڈائبٹیز جا رہی ہوتی ہے نہ کینسر جا رہا ہوتا ہے، لیکن مینٹل پرابلم، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے فیملی وائز، فیملی ہسٹری میں، اور وہ جو ہے وہ اس میں آتی ہے، فیملی ہسٹری میں یہ رن کرتی ہے، ٹھیک ہے، آنے والی نسلوں میں بھی۔
अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। भला अटेंडेंस डिस्मिस भी हो रही है? नहीं, कल तो आज नहीं दी क्या? शीट ही नहीं दी आज इसमें। देखिए